Good morning dear students, I am engineer Sabir Hussain. I have done my engineering from Delhi itself and I have been teaching IIT JEE in various prestigious institutes from last 14 or 15 years. Now this is first time I am coming to you live, and with this company I am involved to teach you from the basic to the highest level of the physics of IIT JEE. But today, before we start anything, we start the basic mathematical tools related to physics, without which हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने सब पैरामीटर को कवर किया है, राइट? तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक जो चीज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें दो पार्ट आएंगी। पहली पार्ट विल बी डिफरेंशिएशन, and the second part will be integration. Now, two things new we have introduced to you. One is differentiation, another is integration. First of all, we will be talking about this differentiation. What is the meaning of differentiation? See, differentiation means to find the change in some quantity with respect to some other quantity which is we are using as a reference. Say for example, a body is moving from this point to this side. Let us say it is moving. It is covering a certain displacement from A to B. Please check that body started from A and it is going to move till B. From A to B, when the body is moving, it is covering some displacement, and this displacement we can say so much. This is the displacement. But while covering the displacement, the body also takes some time, क्योंकि बिना टाइम लगाए डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो सकती। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, राइट? और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का चेंज एक दूसरे के साथ होगा। ऐसा नहीं मैं कहूं कि बॉडी हर एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही है। यह भी हो सकती है कि बॉडी पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, बाद में एक घंटे में सिर्फ 2 किलोमीटर कवर कर रही है, बाद में एक और घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक आपस में रिलेटिवली चेंज आ रही है। ये जो चेंज हम दिखा रहे हैं, इसी को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट से सीखेंगे, राइट? तो डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए जो पहली चीज हम यूज करेंगे, देखिए, जनरल नोटेशंस इन डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन में हम जनरली नोटेशंस क्या यूज करें। The general notations may be d by dx, it may also be d by dt, it may also be d by dt, d by dy. इसको अब हम पढ़ते कैसे? अब देखिए, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू t, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू y। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज चेंज इन सम क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इसको हम कहेंगे चेंज विद रेस्पेक्ट टू t। Similarly, इसको हम कहें change with respect to y. Here the parameter we have used x, here the parameter we have used t, and here the parameter we have used y.
This is one way of saying this, and the same thing can be called as in mathematical language as differentiation with respect to x, जिसको हम d by dx कह रहे हैं, चेंज इन सम क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू x, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको हम फर्दर कैसे आगे ले जाएं? फॉर दैट अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्मूले कैसे लिखें डिफरेंशिएशन के। जनरल फॉर्मूला of differentiation. Now for general formula of differentiation, we can say d by dx of x to the power n. इसको हम ऐसे पढ़े हैं differentiation of x to the power n with respect to x. d by dx of x to the power n को हम पढ़ेंगे differentiation of x to the power n with respect to x. इसको पढ़िए differentiation of x to the power n with respect to x. This is how we read, right? अब इसके लिए फॉर्मूले क्या हो गए? The general formula is n into x to the power n minus 1. n, the power comes first. Then this is written as n into x to the power n minus 1, and then जो भी यहां पर है, देखिए जो भी यहां पर है आप उसको यहां दोबारा से लिखें और साथ में लिखें, इसके साथ में आप लिखें बेस और वेरिएबल। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लिख रहे हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू जो भी चीज यहां आप लिख रहे हैं d बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी वाई, उसको आप यहां फिर से रिपीट करें और ब्रैकेट में लिखें बेस और वेरिएबल। इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। नॉर्मली आपकी बुक्स में आप देखेंगे कि फॉर्मूले यहां तक हैं लिमिटेड, फॉर्मूले इसके आगे ये नहीं है बुक में। अब मैंने इसको जनरली इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि अगर इसका हम यूज प्रॉपरली करें तो आगे कुछ हमें गलती नहीं होगी, मतलब हमसे कुछ मिस्टेक्स जैसी चीज वो नहीं आएगी। अब इसको सीखने का क्या तरीका है, देखिए कैसे इसको अप्लाई करें। लेट अस से मान लीजिए हमारे पास हो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3। सपोज हमारे पास कोई ऐसी चीज है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखें? मैंने आपको सिखाया कि पहले पावर लिखिए, देन बेस की पावर को एक रिड्यूस करके लिखिए और फिर जो भी आपने यहां लिखा हो उसको रिपीट करिए और यहां बेस या वेरिएबल एक चीज लिखिए। अब ये बेस या वेरिएबल कैसे इस्तेमाल होगा वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप पावर लिख दीजिए, दिस इज 3, ये पावर पहले आ गई। देन x टू द पावर 3 माइनस 1। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपने यहां लिखा हो वही आप यहां भी रिपीट कर दें। और अब आप देखें कि हमें बेस लिखना है या वेरिएबल लिखना है। अब आप इसको देखिए गौर से, ये जो x की पावर 3 आपने लिखी, इसमें 3 तो पावर है बट x क्या हुई? बेस। तो हम यहां पर क्या लिखें? दिस इज बेस, राइट। अब ये वाली चीज कितनी हो गई आपके पास? नेक्स्ट स्टेप में ये कट गए, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आंसर आया? 3x, 3 माइनस 1 विल बी 2। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द बेसिक थिंग इन डिफरेंशिएशन। नाउ इसके एक और एग्जाम्पल हम ले लें सो दैट हम कंफर्टेबल महसूस करें इसमें। आइए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा हो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5
प्लस एक्स टू द पावर 2। मान लीजिए इस तरह की चीज है अब हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट इज एक्स टू द पावर 5 एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्स टू द पावर 2। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2। मतलब जो चीज इकट्ठी थी हमने उसको दो पार्ट में कर दिया। अब जो ये वाली चीज है ये हमारी जनरल फॉर्मूला से मिलती जुलती है, और अब आप इसमें क्या करें, पावर पहले लिख दें, देन एक्स टू द पावर इट इज 5 माइनस 1, राइट। एंड देन मैंने आपको कहा था जो चीज यहां है वो मेंशन करिए, तो इसको आप लिखिए डी बाई डी एक्स, और पावर 5 है इसलिए बेस एक्स हो गई, तो यू हैव डन द फर्स्ट पार्ट, राइट। सिमिलरली इस वाली पार्ट को भी करिए, पावर को पहले लिखिए, देन बेस को पावर को एक रिड्यूस करिए, एंड देन ये वाली चीज फिर से मेंशन करिए, और यहां भी पावर 2 है, इसका मतलब बेस एक्स हो गई, तो बेस एक्स यहां लिख दीजिए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको दिखेगा कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है जहां पर नीचे एक्स है और यहां पर भी एक्स है, तो आपको ये वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप तो बाद में कट ही जाना है, राइट। तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट टू इंट्रोड्यूस इट मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लिखिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस में रहे, कभी मिस ना हो। तो अब ये चीज कितनी हो गई, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस दिस इज 2x। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द वे वी यूज द डिफरेंशिएशन, राइट। अब इसमें एक हम अलग भी एग्जांपल ले लें कि अगर जो चीज यहां है, जैसे यहां x थी यहां भी x है, अगर सपोज ये दोनों अलग अलग होते तो तब हम क्या करते। तो उसके लिए हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। आइए एक और एग्जांपल ले लें हम। से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ टी टू द पावर 4। अब आप देखिए जो नई चीज हमने लिखी इसमें ये दोनों सेम नहीं थे। इससे पहले वाली चीज में हमने यहां भी x लिखी थी और यहां भी x लिखी थी। अब हमने यहां x लिख दी लेकिन यहां पर x नहीं लिखी, राइट। तो अब इसको भी हम अपने जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अडॉप्ट करें। कैसे करें, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, पावर आगे लिखिए, बेस की पावर को एक रिड्यूस करिए, दैट इज 4 माइनस 1 करिए। इसके बाद जो भी आपने यहां लिखा हुआ हो उसको आप दोबारा लिख दें। आइए दोबारा लिख दिया, एंड देन हमें देखना है कि बेस लिखें या वेरिएबल लिखें। तो क्योंकि 4 पावर है इसका मतलब t क्या हुई, बेस, तो बेस को आप यहां लिख दें। अब ये चीज कितनी हो गई आपके पास, 4 इंटू टी टू द पावर 3, और इस चीज को एज इट इज रहने दें, इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इन फ्यूचर अगर बेस और एक्सपोनेंट्स दोनों एक जैसे हो रहे हैं या बेस और विद रेस्पेक्ट टू वाली चीज अलग अलग हो रही हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने जो जनरल फॉर्मूला सीखा है उसी को अडॉप्ट करेंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल आल्सो। लेट अस से फॉर द टाइम बेइंग, मान लीजिए आपको मैं दूं डी बाई डी वाई ऑफ अंडर रूट वाई। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ दे दिया आपको। अब ये एक इरेशनल क्वांटिटी है। हम चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन अब है हमारे पास उसकी शक्ल को हम वैसे ही बना दें जैसे हमारी जनरल फॉर्मूला में लिखी है हमने। तो हम क्या करें, इस जो अंडर रूट वाली चीज है इसको पावर के फॉर्म में मेंशन कर दें। कैसे करें, डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 1/2। अंडर रूट को हटाएं, पावर कितनी हो गई, 1/2। क्लियर। नाउ अब देखिए हमारे जनरल फॉर्मूला को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें बोलिए। नाउ पावर को पहले लिखिए, y टू द पावर 1/2 माइनस 1, पावर को एक रिड्यूस करना है। फिर मैंने आपको सिखाया कि जो यहां हो वो आप दोबारा यहां लिख दें, राइट। और फिर क्योंकि ये 1/2 पावर है इसलिए ये बेस हुई y, इसको आप यहां लिख दें। अब आप देखें ये दोबारा से कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब अब ये कितना आ गया आपका 1/2 y टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज -1/2, राइट।
So this can also be written as 1 by 2 and y to the power minus 1 by 2 you can write as 1 by under root 1. So this is the final answer. That means बेसिक फॉर्मेट के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर बेस और एक्सपोनेंट या डिफरेंशिएशन वाली चीज और ये वाली चीज सेम है तब तो आप ये वाले स्टेप को अवॉइड करिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है जैसे कि हमने पहले किया था, इन दोनों में ये दोनों चीजें अलग अलग थी, तो आप इस चीज को लास्ट में रहने दें। ऐसा ना करें कि यहां से डी काट दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो डी से डी है ये ऐसा नहीं है डी इंटू टी या डी इंटू एक्स, ऐसा नहीं है। दिस इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ टी, ना कि डी से डी को काटे, ये ना करें। राइट, लेट अस गो टू द अदर पार्ट ऑल्सो। Now, there are some general formula for it. Other general formula. The other general formula are, suppose we have d by dx of sin x. If it is d by dx of sin x, इसको पढ़े कैसे? इसको पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप इसको कैसे करें? द जनरल फॉर्मूला इज, जब साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखिए? कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। एंड मैंने आपको सिखाया ना कि जो चीज यहां है वो आगे मेंशन करिए, तो यहां लिखिए डी बाई डी एक्स। अब हमें यहां क्या लिखना है? यहां हमें या तो बेस लिखना था और या तो वेरिएबल लिखने थे, इन दोनों में से एक चीज लिखनी थी। तो इस केस में देखिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए साइन 30 डिग्री होती तो आप क्या लिखते? आप लिखते 1/2। मान लीजिए साइन 60 डिग्री होती तब आप क्या लिखते? आप लिखते √3/2। अब आप देखिए कि क्योंकि ये वाली चीज चेंज हो रही है इसलिए ये वाली चीज चेंज हो रही है। राइट, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली चीज है ये क्या हुई? वेरिएबल। तो यहां पर भी हमारे पास वेरिएबल क्या हुए? एक्स। तो हम यहां क्या लिखें? एक्स लिखेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिखें? कॉस एक्स, इस वाली चीज को एज इट इज लिखिए, एंड यहां लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यही वाली वेरिएबल, दिस इज एक्स। और दोबारा से देखें ये कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो गया आपका? सिर्फ कॉस एक्स। दिस इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स। राइट, इसी तरह से हम कुछ और भी फॉर्मूले देख लेते हैं। आइए, सिमिलरली विल से दिस इज फॉर्मूला नंबर सपोज 1। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मान लीजिए ऐसी है। जिस तरह से आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को कॉस एक्स लिखा था, तो अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को लिखना चाहें तब आप इसको क्या लिखें? माइनस साइन एक्स। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाली चीज आप रिपीट करेंगे और ये वाली वेरिएबल साथ में यहां लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि फिर ये चीज कैंसिल हो गई और आपके पास कितना आ गया? माइनस साइन एक्स। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। राइट, अब देखिए इनका यूज कैसे किया जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर में ये हमें किस तरह से प्रॉब्लम दे सकते हैं या किस तरह से चीज हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हम थोड़ा उनके बारे में पहले बात करें। आइए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। सपोज करिए एक नया क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एच कॉस एक्स। राइट, अब लेकिन हमारे पास जो नई चीज आई है उसमें क्या आ गया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम अपने फॉर्मूले में कैसे अकोमोडेट करें? नॉर्मली क्या होना चाहिए? मैंने आपको क्या बोला कि जो साइन के साथ हो वो कॉस के साथ आ जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। राइट, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो भी साइन के साथ थी वो कॉस के साथ आ गई। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को आपने क्या कहा था? कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को भी क्या आप बोले? कॉस एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये वाली चीज है ये वाली आगे लिखिए,
और जो साइन या कॉस या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलावा हो, इसी को तो आप वेरिएबल कह रहे थे, ये वेरिएबल अब यहां लिख दीजिए। अब आप देखिए इसकी शक्ल हमारी जनरल फॉर्मूला से मिलती जुलती हो गई। कैसे? हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा है? dy dx ऑफ x टू द पावर n। देखिए इन दोनों की शक्ल एक जैसी दिख रही है अब हमको, तो इसको हमने क्या लिखा था? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसी तरह हम इसको भी क्या लिखें? ये वाली टर्म एज इट इज रखिए, cos x स्क्वायर। dy dx ऑफ x स्क्वायर को हम क्या लिखे? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब मैंने आपको सिखाया कि अगर ये दोनों चीजें एक जैसी हो तो फिर dy dx वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तब ये कितनी हो गई आपके पास? दिस इज 2x, पहले लिख दीजिए, एंड देन यू गेट cos x स्क्वायर। राइट, फॉर्मूला वही है, बस हमने उसको अप्लाई कर दिया उसी तरह से जैसे हमने सीखा था। पहले यहां x था इसलिए वो कैंसिल हो गया था, अब x नहीं है, x स्क्वायर है, तो उसकी भी डिफरेंशिएशन साथ में कर दीजिए और जो वैल्यू आ जाए उसको आप इस तरह से मेंशन कर दीजिए। राइट, आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए हम एक और एग्जांपल ले लें सो दैट आपको भी दिक्कत ना हो। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि dy dx ऑफ cos x क्यूब प्लस x स्क्वायर होता। सपोज मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास होता कि आपको इसको कंप्यूट करना है जी। तो सबसे पहले आप क्या करें, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो cos के साथ हो वो माइनस साइन के साथ आएगी और जो साइन के साथ हो वो cos के साथ आएगी। तो cos वाली चीज को पहले माइनस साइन के साथ करिए। कैसे करें, क्या लिखें? दिस इज माइनस साइन, जितनी चीज अंदर है वो सब कुछ आप पहले लिख दीजिए। cos के साथ आपने क्या लिखा? माइनस साइन। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी यहां आप लिख रहे हो उसी को आप आगे भी रिपीट करो, dy dx। और फिर जो वेरिएबल पार्ट है, राइट, इस चीज को भी आप यहां लिख दीजिए इस तरह से। आपने लिख दिया। नाउ दिस इज माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे रह गया, इनटू। अब आप देखिए इसमें दो पार्ट आ गए, मतलब पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy dx ऑफ, इसको कैसे लिखें? dy dx ऑफ एक्स क्यूब, और इसको क्या लिखें? प्लस dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब इसको आगे कैसे ले जाएं? देखिए अब जो माइनस साइन वाली चीज है उसको एज इट इज रखिए आप। दिस इज माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने यहीं रख दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितनी हो गई आपके पास? 3x स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला था? पावर आगे लाइए और फिर पावर को एक कम करके लिखिए, राइट। और ये दोनों सेम है इसलिए नेक्स्ट वाले टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस इसको क्या करिए, इसमें भी पावर आगे लाइए, इस पावर को एक कम करके लिखिए। सो दिस इज 2x। So this is our final answer. This is 3x square plus 2x into minus sin x cube plus x square. Clear? ये है sin और cos के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा और हायर में देख लेते हैं कि क्या और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। क्लियर? आइए, फॉर्मूला नंबर 2 तक हम कर चुके थे, अब फॉर्मूला नंबर 3 पर आ जाइए। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मल्टीप्लीकेशन in differentiation. Say for example, मान लीजिए कोई चीज आपको इस तरह से गिवन है dy dx ऑफ a इंटू बी। सपोज करिए इस तरह की कोई चीज गिवन है, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाइड हैं और उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जनरल फॉर्मूला ये कहती है कि पहले पहला टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म a, and then d by dx of the second term b, पहली into differentiation of दूसरी प्लस दूसरी into differentiation of पहली। दिस इज मल्टीप्लीकेशन। कैसे करें दोबारा से समझे। अगर dy dx ऑफ a इंटू बी है हमारे पास,
तो हम फॉर्मूला में कैसे अडॉप्ट करें, हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। कैसे अकोमोडेट करें, देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स होती है आपके पास, मान लीजिए ऐसी चीज है। अब देखिए इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, यहां a इंटू बी थी, यहां एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन में कैसे अडॉप्ट करें, मैंने क्या सिखाया आपको, पहला फंक्शन एज इट इज लिखिए, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा वाला फंक्शन लिखिए और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, राइट। तो इसको कैसे किया जाए, आइए बताइए। क्या लिखें, पहला टर्म एक्स स्क्वायर, देन दूसरे टर्म के डिफरेंशिएशन में क्या लिखें, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या किया हमने, पहला टर्म एज इट इज रखा, राइट, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन किया, देन दूसरी टर्म को एज इट इज रखना है और पहली टर्म को डिफरेंशिएट करना है। दैट क्लियर। नाउ अब देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल साइन के बाहर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने क्या पढ़ा था, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गई, कॉस एक्स। नाउ प्लस दिस इज साइन एक्स, इसको भी मत छेड़िए क्योंकि डिफरेंशियल साइन के बाहर है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखें, पावर पहले लिखें और पावर को एक कम करके लिखें, 2 - 1, दैट्स इट। तो ये कितनी हो गई आपकी, दिस इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस दिस इज 2x, सो 2x एंड साइन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज हाउ वी इनकॉर्पोरेट मल्टीप्लीकेशन इनटू डिफरेंशिएशन। बस आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाइड हुई हैं एक साथ, तो पहली चीज एज इट इज लिखिए, देन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द अदर थिंग प्लस द अदर थिंग इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे एक स्टेप और ले जाते हैं। अगर कुछ दूसरे किस्म की क्वेश्चन हो तो उसको कैसे किया जाए, आइए लेट अस गो टू अदर पार्ट। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब कॉस टी हमारे पास है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। अब देखिए ये भी हमारी प्रोडक्ट फॉर्मूले से मिलती जुलती है, यानी दो चीजें ब्रैकेट में हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हुई हैं और इनका हमें डिफरेंशिएशन लाना है, राइट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पहला टर्म पहले लिखेंगे टी क्यूब, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द अदर टर्म डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, क्लियर, प्लस सेकेंड टर्म कॉस टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या चीज, टी क्यूब। बिल्कुल वही जो हमने सीखा। हमने क्या सीखा कि पहला टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहले टर्म। क्लियर, कोई कंफ्यूजन मत रखिए और बहुत इजी माइंड से सोचिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए टी क्यूब यहां पर आ गई, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था हमने, माइनस साइन, तो हम लिखेंगे माइनस साइन टी। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज एक जैसी हो, जैसे ये टी है ये भी टी है, तो बाद वाले टर्म लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डी बाई डी वाली टर्म, इसको रिपीट मत करिए, प्लस कॉस टी इंटू, इसको कैसे करें, पावर को आगे लाएंगे, पावर आगे आ गई, इंटू टी टू द पावर, पावर को एक कम करके लिखेंगे, राइट। और यहां भी आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों एक ही टर्म है, एक जैसी चीज है, इसलिए अगली टर्म जो डी बाई डी टी वाला ये एक्स्ट्रा आप लिखते थे वो आप मत लिखें, क्लियर। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, दिस इज माइनस टी क्यूब साइन टी एंड प्लस 3t स्क्वायर, दिस इज प्लस 3t स्क्वायर cos t. This is our final answer. This is how we incorporate multiplication into differentiation, right? Next, formula number 4 we'll be doing, and that formula number 4 is division
इन डिफरेंशिएशन। अब डिवीजन के लिए भी हमें एक जनरल फॉर्मूला की जरूरत है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, आप देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए ए बाई बी आपके पास है, दिस इज इन ए डिवाइडेड फॉर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई बी। अब अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई बी है तो ये डिवीजन फॉर्म में है। अब इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखें, देखिए, सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज जनरल फॉर्मूला, और फिर नीचे वाली टर्म पहले लिखिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाली टर्म। बस ये लिखते हुए याद रखें कि जो यहां हो वही आप यहां मेंशन करें, ये ना हो कि कुछ आप अलग कर दें, राइट। क्या किया हमने, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर किया पहले, और फिर नीचे वाली टर्म पहले लिखी, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए लिखा, एंड माइनस लगाइए, देन ऊपर वाली टर्म लिखिए, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाली टर्म लिख दीजिए, बी। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर। इसको दूसरी तरह से देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर बाई डिनोमिनेटर, मान लीजिए ऐसा होता, तो आप क्या करते, आप बोलते डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर दो, कर दिया हमने, फिर डिनोमिनेटर लिखो और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर लिखो, माइनस न्यूमेरेटर लिखो और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख दो, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर। अब इसको यूज कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें, हमें ये कैसे जरूरत पड़ेगी, देखिए उसकी चीज को देखिए। आइए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपसे बोला बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ tan x निकालना है। सपोज हमने ये बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x निकालना आपको। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan x तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितनी होती है, cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितनी होती है, माइनस साइन एक्स। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होती है। अब इसको कैसे किया जाए, तो देखिए tan को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, tan कैन बी रिटन एज साइन बाई cos। तो आप क्या करें, इसको लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक है, tan को हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब देखिए इसकी शक्ल हमारी डिवीजन वाली फॉर्मूले से मिलती जुलती हो गई, आप चेक करें, देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स को हमने क्या लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी है, यानी कि ये जनरल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, राइट, कंफर्टेबली। तो अब हम उसको यूज करते हैं। आइए कैसे किया जाए, देखिए इसको क्या करें, हम पहले क्या करें कि डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर कर दें जी, कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लिख दें, क्या लिखें, cos x, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज आएगी, साइन एक्स, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर हम क्या लिखें, न्यूमरेटर वाली चीज लिख दें, साइन एक्स, एंड देन क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिख दें। क्लियर, बिल्कुल वही किया जो हमने जनरल फॉर्मूले में किया था। अब इसको देखिए, आइए, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने क्या पढ़ा है, कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितनी हो गई, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, माइनस साइन एक्स, और नीचे वाली चीज एज इट इज आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को कितना बोले हम, कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम यहां लिखें कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ माइनस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस, तो ये लिख दें हम प्लस, एंड साइन एक्स इंटू साइन एक्स को क्या लिखे हम, साइन स्क्वायर एक्स, एंड डिवाइडेड बाई कितनी है आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ यू चेक, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, cos square x plus sin square x is 1, and 1 divided by cos square x will be equal to what, this is secant square x. So
नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो अगर हमें, तो हम डायरेक्टली क्या लिख दें, cos स्क्वायर एक्स। यानी ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी हमारे पास अडॉप्ट कर सकते हैं हम उसको एज इट इज। क्लियर? अब देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इस तरह से, सो दैट हम उसको भी इनकॉर्पोरेट कर पाए। लेट्स डू इट। टेक अनदर एग्जांपल नाउ। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई कॉस एक्स है, सपोज है। अब देखिए ये भी जनरल फॉर्मूला की तरह है, डिवीजन की तरह है, तो हम क्या करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें। आइए, डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम डिनोमिनेटर को पहले लिखें इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखें, न्यूमेरेटर लिखें, दैट इज एक्स क्यूब लिख दें, माइनस फिर न्यूमेरेटर लिखें एक्स क्यूब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख दें, दिस इज कॉस एक्स। बिल्कुल सेम जैसे हमने सीखा, हमने डिनोमिनेटर के पहले स्क्वायर किया और फिर डिनोमिनेटर पहले लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमेरेटर लिखा, माइनस न्यूमेरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो एज इट इज जैसे हमने सीखा। अब इसको अप्लाई करिए, दिस इज cos x। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये जनरल फॉर्मूला की तरह है ना, तो इसको क्या लिखें, पावर पहले लिखिए एंड देन पावर को एक कम कर दीजिए, माइनस दिस इज एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितनी हो गई, माइनस साइन एक्स। क्लियर? एंड दिस डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, देखिए ये कितनी हो गई, दिस इज 3x स्क्वायर एंड cos x, दिस इज माइनस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस, एंड दिस इज x क्यूब sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर? सो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों का अडॉप्ट हमने कर लिया, राइट? अब अगर हम थोड़ा सा इसको और ऊपर चलें, दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। अब हम अगर फॉर्मूला नंबर 5 के तरफ चलते हैं, देखिए आइए, फॉर्मूला नंबर 5। मान लीजिए आपके पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉगरिथमिक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथमिक टर्म हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हम फॉर्मूले की डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जैसी कोई चीज है मान लीजिए, तो तब आप क्या करें, देखिए जनरल फॉर्मूला ये कहती है कि जो भी चीज लॉग के साथ है उसको आप 1 अपॉन में कर दीजिए, वॉट एवर इज विद द लॉग, इसको आप क्या करें, 1 अपॉन कर दें, और जो चीज आपने यहां लिखी है उसको एज इट इज यहां भी लिखिए डी बाई डी एक्स में, और जो भी यहां लिखा हुआ हो, कुछ भी हो, यहां पर एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, वट एवर इट इज देयर, जो भी चीज यहां हो वो आप एज इट इज यहां पर लिख दें। तो फॉर एग्जाम्पल यहां एक्स था, हमने लिख दिया एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो 1 हो गया आपका, तो आपका बेसिक फॉर्मूला कितना आ गया, 1 बाई एक्स। क्लियर? अब देखिए इसको यूज कैसे करें, आप पहले तो याद रखें कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है तो जो भी चीज लॉग के साथ हो पहले उसको 1 बाई कर दीजिए, और फिर जो यहां लिखा आपने डी बाई डी एक्स वो फिर रिपीट करिए, और जो लॉग के अलावा हो यहां पर जो कुछ भी हो उसको आप यहां लिख दीजिए। तो हमने ये लिखा, फॉर्चुनेटली ये कट गया, सो दिस इज इक्वल टू ओनली 1 बाई एक्स, राइट। अब इसका यूज कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स होता, मान लीजिए ऐसा होता, अब क्या करते, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी चीज लॉग के साथ है उसको आप पहले क्या करें, 1 अपॉन कर दें। तो आप क्या करें, इसको लिखें 1 अपॉन साइन एक्स, एंड देन यहां जो भी लिखा हो आप उसको यहां रिपीट कर दें, डी बाई डी एक्स कर दें, और लॉग के अलावा जो कुछ भी है, जैसे यहां पर कितनी है आपकी साइन एक्स है, तो इसको आप यहां लिख दें, लिख दिया हमने। अब देखिए इसको पहचानिए,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने अभी क्या पढ़ा था, कॉस एक्स, तो हम यहाँ क्या लिख दें, दिस इज 1 बाई साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स। और चेक कीजिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या बोले हम, कॉट एक्स, राइट, दिस इज द आंसर। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, आइए। बस आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो जो भी चीज लॉग के साथ हो उसको आप 1 बाई कर दीजिए, और फिर जो यहां लिखा हो उसको यहां लिख दीजिए उसके साथ, एंड जो भी लॉग के अलावा हो वो यहां लिख दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल हम एक और सिंपल क्वेश्चन ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ से लॉग एक्स स्क्वायर होता, मान लीजिए ऐसा होता। अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी चीज लॉग के साथ है पहले आप इसको 1 अपॉन कर लीजिए, तो आप इसको कर दीजिए 1 अपॉन, ये आ गया 1 अपॉन। अब आपने जो यहां लिखा है उसको आप रिपीट करिए, सो यू राइट डी बाई डी एक्स, और मैंने आपको क्या बोला कि जो भी लॉग के अलावा हो वो यहां लिख दीजिए, तो आपने ऐसे लिख दिया। अब ये कितना हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखिए ये जो चीज आपने लिखा इसको जनरल फॉर्मूला से करिए। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि पावर को आगे लिखें और बेस लिख के पावर 1 कम कर दीजिए। सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस इज 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स 2 डिवाइडेड बाई x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं आपके साथ, मैं आपको बताऊं। देखिए आइए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास होता डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर साइन वाई क्यूब, मान लीजिए ऐसा होता। थोड़ा सा हायर मैंने कर दिया क्वेश्चन को। अब यहां पर हमने एक एक टर्म ही लिखा था, अब हम यहां एक से ज्यादा टर्म लिख रहे हैं। अब देखिए फिलहाल तो आपको ये दिख रहा है कि अगर ये लॉग के साथ होता, मान लीजिए ये लॉग के साथ होता, तो मैंने आपको सिखाया कि जो भी चीज लॉग के साथ हो पहले आप उसको 1 अपॉन कर दें, तो आप इसको 1 अपॉन कर दें, 1 अपॉन वाई स्क्वायर साइन वाई क्यूब, ये आपने नीचे लिख दिया, 1 अपॉन में कर दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपने यहां लिखा हो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी टी, जो भी आपने लिखा हो वो आप यहां जरूर लिख दें, यहां लिख दें डी बाई डी वाई, और लॉग के अलावा जो कुछ भी हो वो सब आप यहां पर मेंशन करते, यानी आप लिखें वाई स्क्वायर साइन वाई क्यूब, ये आपने लिख दिया। ये वाली टर्म एज इट इज सेफ रखिए, 1 अपॉन वाई स्क्वायर साइन वाई क्यूब। और देखिए यहां आप गौर करें कि यहां पर हमारे पास दो चीजें आ गई, यानी यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा कि पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, वही सेम चीज आप अप्लाई करिए, वाई स्क्वायर लिखिए एंड देन डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई क्यूब लिखिए, प्लस सेकेंड टर्म लिखिए साइन वाई क्यूब, एंड देन डी बाई डी वाई ऑफ द फर्स्ट टर्म इज वाई स्क्वायर, राइट। अभी तक हमने ये लिखा, अब इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आइए, ये जो आपका टर्म है ये वाली, ये आपकी यहीं पर रह गई, वाई स्क्वायर साइन वाई क्यूब, ये यहीं पर रह गई, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर है, हमें इसके लिए बॉदर नहीं करना, इसको एज इट इज आप लेकर जाइए नीचे तक। अब यहां आ जाइए, देखिए दिस इज वाई स्क्वायर। अब जो ये वाली चीज है देखिए डी बाई डी वाई ऑफ साइन में कुछ भी हो उसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, कॉस के फॉर्म में। तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई को हम कैसे लिखें, कॉस वाई क्यूब, राइट। और फिर मैंने आपको सिखाया कि ये वाली चीज फिर से आगे लिखिए आप, डी बाई डी वाई, और जो साइन के अलावा हो वो भी यहां लिख दीजिए, दिस इज वाई क्यूब। ये आपका पहला टर्म क्लियर, ठीक है। क्या किया हमने, देखिए पहले टर्म को ऐसे रखा। अब यहां पर हमारा डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई क्यूब था, मैंने आपको क्या बताया कि साइन के साथ जो होगी वो कॉस के साथ आएगी,
तो जो साइन के साथ थी वो कॉस के साथ आ गई, और फिर डी बाई डी वाई यही वाली चीज यहां मेंशन करिए, और ये जो वाई क्यूब थी यानी साइन के अलावा जो कुछ थी वो आप यहां लिख दीजिए। क्लियर? प्लस इस टर्म को केयर कीजिए, ये कितना हो गया साइन वाई क्यूब, और ये टर्म कितना हो गया आपका, दिस इज वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का आप जनरल फॉर्मूला से क्या करते हैं, आप पहले पावर लिखा, फिर y की पावर कितना लिखा 2 माइनस 1। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा हम आगे ले चलें। क्लियर? आइए देखिए नाउ, अब जो हमारे फॉर्मूले थे, मतलब हमारा लास्ट स्टेप था, दैट इज 1/y स्क्वायर साइन वाई क्यूब। ये तो हमारा नीचे था, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हमने लिख रखे थे, देखिए y स्क्वायर टर्म विल रिमेन एज इट इज, cos y स्क्वायर टर्म विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि ये दोनों डिफरेंशियल के बाहर थे। इन दोनों को हमने रिपीट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा से। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम ये दोनों टर्म पहले लिख लेते हैं। आइए इन दोनों टर्म को कैसे लिखें, यहां लिख देते हैं y स्क्वायर cos y क्यूब, ये तो हमारा पहला दोनों टर्म हो गया। और डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब को कितना बोले, n इंटू एक्स टू दावर n माइनस 1 बोले, यानी 3 इंटू वाई टू दावर 3 माइनस 1, मतलब कितनी 3y स्क्वायर। तो ये वाली चीज आप यहां लिख दीजिए इंटू 3y स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस साइन y क्यूब एंड द अनदर टर्म वाज 2y, इसको भी आप यहां लिखिए। आप दोबारा से गौर करें, हमारे पास जो लास्ट स्टेप थी उस स्टेप में नीचे y स्क्वायर साइन वाई क्यूब थी, वो हमने एज इट इज रखा। यहां ये y स्क्वायर और ये cos y क्यूब साइन वाई क्यूब की cos y क्यूब हो गई थी, और ये जो डिफरेंशिएशन पार्ट था वो हमने इधर रख दिया था। साइन वाई क्यूब यहाँ है, डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर, इसको हमने कर दिया 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1। अब इसी चीज को हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया कि वाई स्क्वायर एज इट इज रखा, cos y क्यूब एज इट इज रखा, और डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब को हमने लिख दिया कितना 3y स्क्वायर। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज रखा हमने। तो दिस इज नाउ वी आर गेटिंग इनटू फाइनल स्टेप साइन y क्यूब, this is 3y square and this is y square, so this becomes 3y to the power 4 cos y cube plus this is 2y and sin y cube। मतलब जब हम आंसर लिखें तो हमें ये दिखना चाहिए कि पैरामेट्रिक फंक्शंस पहले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद हो। ऑलवेज वी फॉलो दिस रूल, राइट। अब देखिए, अब हमने जो ये बेसिक चीजें सीखी, हमने इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब अप्लाई कर दिया, राइट। अब एक और लास्ट फॉर्मूला रहता है जिसको मैं अप्लाई करना चाहता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन पार्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो लास्ट फॉर्मूले से रिलेटेड डिटेल करवा दूं, राइट। आइए देखिए, जो कुछ भी हमने सीखा, हमें क्या करना है कि उसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना है और माइंड में रखना है कि जो चीज हम सीख रहे हैं वो हमारे माइंड में रहे, राइट। अब देखिए, एक और लास्ट फॉर्मूले की बात करता हूं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, राइट। दिस इज प्रोबेबली फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूला। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, अगर कुछ ऐसी फॉर्मेट है हमारे पास, तो आप याद रखें कि जो कुछ भी है यहां पर वो सब कुछ पहले एज इट इज यहां लिख दीजिए, दैट इज ई टू द पावर एक्स, एंड देन ये वाली चीज पहले की तरह जैसे हम कर रहे थे इसको कंटिन्यू करिए, डी बाई डी एक्स लिखिए यहां पे, और जो भी ई के पावर में हो, वट एवर इज देयर इन द पावर ऑफ ई, सब कुछ यहां पर आप मेंशन कर दें। क्लियर? तो अब देखिए, ये वाला पार्ट कितना हो गया हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया ई टू द पावर एक्स। क्लियर? अब इसको यूज कैसे किया जाए, इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा देखिए प्लीज। कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमने ले लिया। तो हमने अभी सीखा है कि जो भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है, पहले तो उसको एज इट इज यहां लिख दीजिए, उसके बाद जो आपने इधर लिखा उसी को आप यहां भी लिखें, और फिर जो ई की पावर में हो वो सब कुछ आप यहां लिख दें। क्लियर? तो इसको अप्लाई करिए। देखिए क्या किया जाए, इसको सबसे पहले ये पूरी चीज यहां लिख दी जाए,
लिख दिया हमने, देन डी बाई डी एक्स, एंड देन ई की जो पावर फॉर्मेट की चीज थी वो सब आप यहां लिख दीजिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब ये कितना हो गया जी, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसको आप क्या लिखें, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जनरल फॉर्मूला जो हमने सीखा, तो हम कैसे लिखें, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, दैट्स इट, दिस बिकम्स 2x, तो इसको लिखिए 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। रिमेंबर दैट कि चीजें वही है, एप्लीकेशन वही है, आपको एक जनरल स्टेप से एक लाइनिंग बना के चलते रहना है, कहीं आप मिस मत करिए लाइनिंग, अपने आप आंसर सही आ जाएगी। क्लियर? एक मैं क्वेश्चन और ले लूं सो दैट आपको थोड़ा और क्लियरली पता चले। आइए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास होता डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, डी टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब हम हमने क्या सीखा कि जो भी है वो सब कुछ पहले आप लिख दो एज इट इज, तो हम लिख देते हैं ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, एंड देन मैंने आपसे कहा कि जो यहां आप लिख रहे हो डी बाई डी एक्स वो यहां भी लिखो, और जो भी ई के अलावा हो वो सब लिख दो, यानी क्या लिखूं मैं, एक्स साइन एक्स, ये हमने लिख दिया। क्लियर? अब आप देखिए ये तो एज इट इज रहेगी क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन पार्ट के बाहर है, डिफरेंशिएशन पार्ट के अंदर जो चीज है हमारे पास, वी हैव x इंटू साइन एक्स, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में ये है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला एज इट इज जैसे हमने सीखा वैसे लगा दीजिए। तो हम क्या बोले, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इंटू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड जो हमने सीखा था, प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला बनाया था, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, जैसे हमने सीखा। तो दिस बिकम्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, और ये आ गया एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को क्या बोले हम, कॉस एक्स, ये आ गई, प्लस साइन एक्स into d by dx of x is what, 1, because this is cancelled. So finally I got e to the power x sin x into x cos x plus sin x. That's it. This is the final answer. Clear? Now अब देखिए जो कुछ हमने अब तक सीखा इसमें फिजिक्स हमने इन्वॉल्व नहीं की, हमने बस बात करी कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही इसलिए है कि उसको फिजिक्स में इनकॉर्पोरेट करें। क्लियर? तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रब आउट कर दें। क्लियर? आइए देखिए, अब मैं आपको समझाऊं कि कैसे फिजिक्स में हम उसका यूटिलाइज करें। उसके लिए हम टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। क्लियर? आइए देखिए, हमने फिजिक्स में जो चीजें पढ़ी हैं हम उसका पहले यूज करें। आपने ऐसे पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट को सपोज आपने मेंशन किया x, उसके बाद आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप कैसे बोलते हो, आप बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आप बोलते हैं। किसको? वेलोसिटी को, राइट? वेलोसिटी को बोला हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में बोलते हो? आप कैसे बोलते हो? आप बोलते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप वर्बली पढ़ते हो वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब देखिए, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखें? हम ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स। पढ़ के देखिए इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गई हमारे पास? वेलोसिटी। यानी मैथमेटिकली कैसे बोले? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। क्लियर? सिमिलरली अगर आप एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हो आप? आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आप बोलते हो एक्सीलरेशन। तो इसको भी हम डिफरेंशियल पार्ट में कैसे लिखें? डी बाई डी टी ऑफ वी, दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सीलरेशन। यानी व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन टू अस, और अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है और हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो हम क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें। क्लियरली? इस तरह से इसकी डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आपने बोला वेलोसिटी, और उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह आपने इसको लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोला आपने? एक्सीलरेशन। अब देखिए इसका इस्तेमाल क्या है, किस तरह से इसका यूज करना है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। बस आपको मेन इंपैक्ट इस बात में रखना है कि विद रेस्पेक्ट टू वाली टर्म क्या चीज है, राइट? देखिए आइए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी। मान लीजिए सपोज एक ऐसा इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है कि डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टी आर टाइम, दिस इज टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आप चेक करें एक रिलेशनशिप है, राइट? और हमसे वो कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमने अभी अभी सीखा है, क्या सीखा? कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अवेलेबल हो और वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या कर दें? डिफरेंशिएशन कर दें। कैसे करें? विद रिस्पेक्ट टू टी कर दें। क्लियर? तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू dx बाई dt, दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। अब आप x की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आप एज इट इज यहां पुट कर दें। तो हम पुट कर देते हैं d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी, ये हमने पुट कर दिया। x की जो वैल्यू हमें दी गई थी हमने एज इट इज इसको यहां पर पुट कर दिया। क्लियर? अब इसको ओपन कर दीजिए। देखिए 3 पार्ट में, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो अगर हमें इसको क्लियरली मेंशन करना हो तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू, क्या करें? हम इसको लिखें d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, पहला टर्म, सेकेंड टर्म माइनस d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर, सेकेंड टर्म, एंड देन प्लस d बाई डी टी ऑफ t। ये आ गया हमारे तीनों टर्म। अब इन तीनों टर्म में पहली टर्म को क्या करें आप? कैसे लिखें? इसको क्या लिखेंगे? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? टी स्क्वायर। क्लियर? माइनस ये 2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल दें, यानी 2 को बाहर ले जाएं। जब आप 2 को बाहर ले जाएंगे d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बच गई। d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2t। क्लियर? प्लस दिस इज t, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास टोटल कितना हो गया? 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेलोसिटी। कब चाहिए? जब टाइम कितना हो? 2 सेकेंड का। तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए सिंपली जितना टाइम का वैल्यू दिया गया है आपको, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Therefore, we'll say velocity is equal to 3 into t स्क्वायर है, तो t की वैल्यू क्या है आपके पास? 2, तो यहां लिखिए 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी के बदले लिख दीजिए 2 प्लस 1। सो दिस बिकम्स 4 3 जा 12 माइनस 8 प्लस 1, दिस इज 13 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 5।
5 यूनिट्स। क्लियर? और अगर आप इसको थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए, इस चीज को इस तरह से लिखिए, वेलोसिटी एट t is equal to 2 second. This is the final answer. Clear? That's it.